हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया का बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस का पेपर। ये 2021 का पेपर है, यानी कि इसी साल का है और ये सेट ए है। ये क्वेश्चन सेट ए है। आपके पास कोई और दूसरा भी सेट हो सकता है, लेकिन सभी का क्वेश्चन सेम ही होता है, बस आगे पीछे रहता है। और हाँ, एक बात मैं और बता दूँ कि इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे वीडियो से जो मैंने प्रोवाइड कराया है आपको 1000 MCQ सीरीज़ से पॉलिटिकल साइंस के, उससे कई सारे क्वेश्चंस आपका मैच हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, चाहे वो जामिया के लिए करें या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए या फिर एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमारे वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, कई सारे उस पर वीडियोस है जो आपको एंट्रेंस क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं, और आज हम इसमें पूरा 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, spot the error in the following sentence and choose the right option from below to correct it. Bible says that the sun goes round the earth. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, the Bible says that the sun goes round the earth. Next question है, spot the error in the following sentence and choose the right option from the below to correct it. The Taj Mahal is situated at the Agra. Answer is option number A, the Taj Mahal is situated at Agra. Next है question number 3, correct the verb in the following sentence. If any go wrong, I will be blamed. Answer is option number B, if anything goes wrong, I will be blamed. Next है question 4, correct the tense in the following sentence. The boy fall down while he was running. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, the boy fell down while he was running. Question number 5, choose the correct preposition of direction for the following sentence. A girl went past them on a bike. Answer is option number A, a girl went off them on a bike. Next question, find out the emphasizing adverb in the following sentence. Your excuses are completely unbelievable. Answer is option number D, unbelievable. Next question is question number 7. Find out the collective noun in the following sentence. Cattle were grazing in the field. Answer is option number B, cattle. Next question 8. Find out the phrasal verb in the following sentence. The thieves hope to get away with the crime. Answer is option number C, get away. Next question 9. Find out the modal verb in the following sentence. You could ask your dad to help us. Answer is could. Option number C. Next है, find the gerund in the following sentence. Running is a good way to keep fit. Answer is running. Option A is the right answer. Next, find out the quantifying determiner in the following interrogative sentence. Does the teacher give you the much homework? Answer is much. Option B. Next है, the superlative form of the word difficult is. Answer is most difficult. The pen is mine. In this sentence, the word mine is a option is possessive pronoun. Option C होगा correct answer. Next है, find the correct indirect speech of the following sentence. I live in a house by the sea, said Sana. Answer is option number B. Sana said that she lives in a house by the sea. Next है question number 15. Find the subject in the following sentence. Kalpana Chawla died during her travel in the space. Answer हो जाएगा option number D, Kalpana Chawla. Next है, find the predicate in the following sentence. All roads lead to happiness. इसका आंसर होगा option number C, lead to happiness. The synonyms of solidarity is. Answer होगा option number C, affinity. Next है, the antonym of freedom is. Answer हो जाएगा option number C, subjection. Next है, which one of the following pairs of word is homonym? Answer हो जाएगा option number C, root, root. Next है question 20. The meaning of the phrase down to earth is. Answer होगा option number C, practical. Next question 21. The meaning of the proverb poverty is no sin is. Answer is option number A, a person should not be regarded as inferior or culpable simply because they are economically disadvantaged. Next है, what is the meaning of teach a man to fish? Answer is option number A, teaching someone how to do something is more helpful to them in the long run than just doing it for them. Next question is 23. Ellipsis mark in punctuation is used to. Answer is option D, to indicate that one or more words have been intentionally left out. Next question, tell me the truth is. Answer हो जाएगा option number A, an imperative sentence. Next question 25. Which of the following is not an element of paragraph writing? Answer होगा option number A, subject sentence. अगला है, the major part of Constitution of India came into force on. Answer is 26 January 1950.
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड दैट एंड इनैक्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री? आंसर इज चाइना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? आंसर होगा कम्युनिज्म, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड? आंसर हो जाएगा सोशल हायरार्की। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैंड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? आंसर इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड इन द ईयर? आंसर हो जाएगा 1789, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिपब्लिकनिज्म इज अ रूल बाय? आंसर होगा द पीपल। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय? आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, सेक्युलरिज्म रिफर्स टू? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, राइट्स आर? आंसर होगा लीगल इंटाइटलमेंट्स ऑफ सिटीजन्स। 37, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विटनेस्ड अ सिविल वॉर ओवर द क्वेश्चन स्लेवरी? आंसर हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स? आंसर हो जाएगा स्पेशल प्रोटेक्शन गिवन बाय द स्टेट टू वीकर सेक्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया? आंसर हो जाएगा राइट टू हेल्थ। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? आंसर हो जाएगा टू डिनाई चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट एट प्रेजेंट इन इंडिया? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट हैज नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर? आंसर हो जाएगा फिशरीज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव लेजिस्लेटिव पावर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, who among the following favored self-governing and self-sufficient villages? Answer is M.K. Gandhi. Option B is the right answer. Next है, who among the following appoints the Finance Commission of India? Answer is the President. Option B is the correct answer. अगला है, 356 of the Indian Constitution deals with? So the answer is constitutional breakdown in a state. Option A is the right answer. Next है, the Union Council of Ministers is responsible to? आंसर हो जाएगा दी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अल्टरनेटिव ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया? आंसर इज इंग्लिश। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, द चीफ मोडस ऑपरेंडी ऑफ कल्चरल इंपेरियलिज्म इज? आंसर हो जाएगा हेगेमोनी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म? आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद वाज? आंसर होगा अल-बिरूनी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ टीचर ऑफ चिशली सिलसिला? आंसर हो जाएगा मोहम्मद कासिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, आलम निर्भर भारत अभियान इज अ? आंसर होगा ऑप्शन ए, ₹20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज टू एड इंडिया गेट आउट ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द टायरानी ऑफ द मेजॉरिटी? आंसर होगा एलेक्सिस दे टॉक्यविल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज अबाउट? आंसर हो जाएगा ए प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल? आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द 2020 नोबेल लिटरेचर प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू? आंसर होगा लुइस ग्लक। नेक्स्ट है, द अमेरिकन वुमेन ऑफ origin to fly to space recently aboard VSS Unity is? आंसर होगा सिरीशा बांदला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ? आंसर होगा रशिया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ अर्जुना अवार्ड? आंसर हो जाएगा चेतन शर्मा। नेक्स्ट है, द 14 पॉइंट्स प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ? आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट है, तालिबान इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट केम टू पावर इन? आंसर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64, इन इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, द गुपकर अलायंस इज अ कोएलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन, आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, द मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द आइडिया ऑफ जनरल विल, आंसर होगा जे रोशियो। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रिफर्स टू, आंसर हो जाएगा राइजिंग प्राइसेस। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, इसका आंसर हो जाएगा द हॉग। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ सिविल राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट टू इलेक्ट एंड टू बी इलेक्टेड। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है द प्रोग्राम ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन वाज एसोसिएटेड विद, आंसर इज माओ से तुंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, हमास इज अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, आंसर होगा पैलेस्तीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनजीओ कैंपेनिंग फॉर ह्यूमन राइट्स, so the answer is Amnesty International. Next है who among the following was considered to be a forerunner of backward class movement in India, आंसर हो जाएगा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। नेक्स्ट है द साइंटिफिक मेथड इन सोशल साइंसेस एम्फेसाइज ऑन, सब्जेक्टिविटी होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द गलवान वैली इज इन, तो यह है ईस्टर्न लद्दाख होगा इसका आंसर। अगला है द डोकलाम मिलिट्री फेस ऑफ हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है एलओसी इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस पर्टेन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द नोशन ऑफ डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सर्टेन मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर प्रैक्टिस्ड, आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट, आंसर इज सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द कोर्ट्स फॉर रिलीज अ पर्सन हु इज अनलॉफुली detained, answer is habeas corpus। अगला है which of the following articles of the constitution of India deal with minority interest, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 29 एंड 30। नेक्स्ट है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ, आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, answer is to provide affirmative action, option D is the right answer। Next है who among the following is the author of The God of Small Things, answer is Arundhati Roy, option D is the right answer। अगला है who among the following is not a part of Sachar Committee on Social, Economic and Educational Status of Muslim in India, answer हो जाएगा ओमेन चंडी। और यहाँ से टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉलोड बाय टू कंक्लूजन 1 and 2। इफ यू हैव टू टेक द टू स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे आर सीम टू बी at variance from commonly known facts, read the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the given two statement disregarding the known facts। ये है सभी आंसर्स और यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 91 to 95। मैं आपको सभी के आंसर बता दे रही हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन शो कर दूंगी। सो 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इफ़ नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। 92 का भी ऑप्शन डी ही होगा आंसर इफ़ नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। 93 का होगा सी इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। और 94 का भी सी ही होगा इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। और 95 का हो जाएगा ए इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ 91, 92, 93, 94 एंड 95। तो यहाँ से नेक्स्ट है इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू assumption। एन assumption is something supposed or taken for granted। You have to consider the statement and decide which of the assumption is implicit in the statement। तो ऊपर जैसा ही है सभी क्वेश्चन, यहाँ पर सभी आंसर्स दिए हुए हैं और मैं सभी के आंसर्स बता दे रही हूँ, फिर बाद में मैं क्वेश्चन शो कर दूँगी।
तो क्वेश्चन 96 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इफ़ बोथ एजम्पशन 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। एंड क्वेश्चन 97 का आंसर भी सेम ही होगा, ऑप्शन डी, इफ़ बोथ एजम्पशन 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। और 98 का होगा सी, इफ़ नाइदर एजम्पशन 1 और 2 इज़ इम्प्लिसिट। और 99 का होगा ऑप्शन ए, इफ़ ओनली एजम्पशन 1 इज़ इम्प्लिसिट। और 100 का होगा ऑप्शन सी, इफ़ नाइदर एजम्पशन 1 और 2 इज़ इम्प्लिसिट। मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ। 96 का क्वेश्चन है ये, 97, 98, 99 और 100। सो स्टूडेंट्स, वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन गया होगा। सो जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जामिया के लिए, अलीगढ़ के लिए, DU के लिए, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो हमारा विजन मैप प्लेटफॉर्म बेस्ट है उनके प्रिपरेशन के लिए। और भी कई सारे वीडियोस अपलोड होंगे नेक्स्ट ईयर वालों के लिए। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें विजन मैप की तरफ से, जो भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आपको नोटिफाई हो जाए। मिलते हैं जल्दी, बाय।